محمد ادیب صاحب، جناب روشن بیگ صاحب، جناب عبید اللہ شریف صاحب، جناب محمد عالم صاحب اور بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ نے محمد ادیب صاحب کو سنا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ادیب صاحب جیسے ایک مفکر اور قوم کا درد دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، بے باک بولنے والے ہیں اور جب بولتے ہیں تو حق کی آواز اٹھاتے ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ کے باہر. ان کی زندگی ملک کے لیے اور ملت کے لیے سے وہ پوری طرح سے اس میں لگ گئے ہیں. بہت کم لوگ ہیں کہ جو فکر کرتے ہیں. وہ قوم جو نہیں فکر کرتی وہ ترقی نہیں کر سکتی. تو ادیب صاحب جیسے درد رکھنے والے لوگ جد و جہد تو کرتے ہیں، مگر جب ایک تجزیہ کرتے ہیں سارے ہندوستان میں ملت کا تو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج کے جو حالات مسلمان گزر رہا ہے وہ خود مسلمان اس کے رسپانسبل ہے، دوسرے کوئی نہیں. ہم کبھی ہمارے ناکامیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری ایک فطرت بن گئی ہے کہ ہم ہماری ناکامیوں کو دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. ہم کبھی اپنے آپ کو قصوروار نہیں تھا. ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو کون ہاتھ پکڑے گا، ہمیں پچھلے ہیں، ہمیں کوئی انکریج نہیں کرے گا. یہ جو نگیٹیوٹی جو ہماری قوم میں کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے، چھوٹی موٹی نگیٹیوٹی نہیں ہے. ہر چیز کو مسلمان شروع کرتا ہے نگیٹیو ایٹیٹیوڈ سے کہ مسلمان ہمیں حکومت سے کچھ نہیں مل رہا ہے، سماج سے کچھ نہیں مل رہا ہے، ہمیں ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. میں مانتا ہوں یہ سب صحیح شکایتیں ہیں، مگر کب تک آپ یہ شکایتوں کے بارے میں بول بول کے زندگی گزارو گے؟ ویسے نسلیں گزر گئے. جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے تو یہی شکایتیں تھیں، آج بھی وہی شکایتیں ہیں، آئندہ بھی وہی شکایتیں ہیں. تو اللہ کے واسطے سوچو، آپ دوسروں سے کیا کم ہیں؟ مسلمان کس چیز سے کمی ہے اس کے پاس؟ کیا اس کے پاس دولت نہیں ہے؟ بڑے بڑے مالدار جیسے دوسرے قوموں میں دولت مند بھی، اس میں بھی دولت مند ہے، اس میں بھی غریب ہیں، غربت ہے. ہر چیز ان میں جو ہے ہمارے میں ہے، ان میں جو نہیں ہے وہ ہمارے میں بھی نہیں ہے. کیوں ہم الگ سمجھتے ہیں؟ کیوں کمزور سمجھتے ہیں؟ یہ جو چیز ہے ملت کو خراب کر. اور جیسا کہ ہمارے میں اتحاد نہیں ہے، یعنی کوئی ترقی کرتا ہے تو اس کو گرانا اور شکایتیں کرنا ایک مشغلہ بن گیا ہے ملت کا. اگر یہ خیالات آپ کے ہیں تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ کیسے لوگوں کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟
कैसे राहबरी कर सकते हैं तुम? अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे हमें कुरान दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी करने के लिए इंसानियत के उन्हें भेजे। अब हम उनके उम्मती हैं, हम कैसे रहबर बने? तो आज वक्त आ गया है कि जो हो गया हो गया। एक मिल्लत में आज हिंदुस्तान का मुसलमान को अगर एक लफ्ज़ में कहूँ तो मैं उसको देने वाला बनाने, समाज को देने वाला बनना चाहिए। बिल्कुल। छोड़ो ये पूछने का हमारे पास कुछ नहीं कुछ नहीं, आप देने वाले बनो, आपके पाँव पर गिरेंगे दूसरे। अगर आप में अच्छा डॉक्टर है तो वो नहीं देखेगा मुसलमान है। आरएसएस वाला ये नहीं कहेगा मैं नहीं जाता मुसलमान के पास। एक छोटा इंसिडेंस, हमारे टुमकुर के स्वामी, सब जानते हैं टुमकुर का, मत टेलिंग, 106 साल बीमार हो गए उन्होंने, और वो बीमारी मद्रास में एक डॉक्टर रहते जो मुसलमान है। वो स्वामी इतना इन्फ्लुएंस है, तेरी हुकूमत को वो हिला दे सकता। मुझे विकास वो मुसलमान है तो पूरे लोग मुझे अप्रोच किए, किसी भी तरह से उनको यहाँ इलाज करने बुला लो, हम यहाँ से फ़्लाइट भेजेंगे, फ़्लाइट स्पेशल चार्टर्ड फ़्लाइट भेजेंगे उनको। मैं उनसे राबिता किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता, अगर लाएं तो मैं यहाँ मद्रास में इलाज करूँ। तो स्पेशल एम्बुलेंस में स्वामी को मद्रास ले गए, उनका इलाज किए। वहाँ ये नहीं देखा गया कि मुसलमान है, काबिलियत और ज़रूरत। तो समाज की ज़रूरत बनना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा हॉस्पिटल है, आपके पास अच्छे इदारे हैं, और ये सीखो कि सोसाइटी को हेल्प करें, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए हम मददगार बनना चाहिए, तभी आपकी इज्जत होगी। दुनिया में देने वाले की इज्जत होती है, पूछने वाले की इज्जत नहीं। तो कौम को हमको तब्दील करना पड़ेगा, जैसा कि जूस करते हैं। अब जूस कितने हैं, उनकी इज्जत है, उनको कोई धुतकारता नहीं। तो हमको देने वाले बनना चाहिए। अगर वो बने और हमारा हक पूछने की ताकत रखना चाहिए। जैसे कि आज एक आजमाइश का वक्त है मुसलमान के पास, इलेक्शन, हम जमहूरियत में हैं, जमहूरियत ही हमारी एक ताकत है। अगर जमहूरियत नहीं तो नहीं, हम कुछ भी नहीं हमारे पास ताकत है। वो जमहूरियत को बचाने का वक्त आया है। यहाँ कांग्रेस क्या है, ये क्या है, आज आपको देखना चाहिए कि किस तरह से ये आइन को हम बचाएं। अब खुला लिखा हुआ है कि ये 400 पार इसलिए करता है कि इसलिए आइन को बदल, कुछ भी कर सकता है। अगर उसके पास मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी तो मिलती है, मगर 2/3 मेजॉरिटी हो गई तो आइन गिन सब बदला जा सकता है। अब उसको कोई रोकावट नहीं। और डिक्टेटर, जैसा कि खुद सुब्रमण्यम स्वामी कहता है, बहुत से हमारे जर्नलिस्ट कहते हैं कि ये डिक्टेटर है। अब ये डिक्टेटर रिजीम में दूसरे मुल्कों में मैं सुना था डिक्टेटर्स क्या होते हैं। आज हम हमारे आंखों से देख रहे हैं कि डिक्टेटर शुरुआत है। तो इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, आपस के नाइतफाक को दूर रखकर हम एक हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि इलेक्शन आया है, इलेक्शन जाता है। मैं जिस तरह से बेंगलुरु में
कर्नाटक में मुसलमान में एक बदलाव आया है कि नहीं, हम चेंज करना है, हमको डेमोक्रेसी या हमारा आइन को बचाना है, ये बेदारी आई है। इस तरह से रज़ाकाराना काम हो रहा है हर जगह, और कोशिश हर तरफ से हो रही है। जैसा कि अदीब साहब ने कहा कि जुमा का दिन इलेक्शन है और वहाँ छोटा खुतबा पढ़ें, तमाम करें, वो अहम है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में अमीर शरीयत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि खुतबा सिर्फ अरबी का खुतबा पढ़ें, हम छोटी आयत नमाज में तक छोटी आयत पढ़ के आप नमाज करें, ये तो दिया गया है। और आज मैं एक अनाउंसमेंट देखा, वो जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके तरफ से यह है कि आप अगर उम्रा जा रहे हैं, उम्रा एक नफिल है, ये आपका वोट देना फ़र्ज़ है, तो ये पूरा कीजिए। उम्रे को जाना है तो पोस्टपोन कर लीजिए। ये भी ऐलान आया है, बड़ी खुशी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये सीट की अहमियत क्या है। एक वक्त मुसलमान 3 MP यहाँ से होते थे, कर्नाटक से, वो 2 हुए, 2 के बाद 1 हुए, 1 के बाद 1 भी नहीं, 0 हो गए। तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? थोड़ा सोचिए, 22 करोड़ लोग, हम माइनॉरिटी हैं, अक्सरियत हैं, अक़लियत हैं, मगर मामूली अक़लियत नहीं है। आपके पास ताकत है। 22 करोड़ लोग कम नहीं होते, कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, निकाल दीजिए। तो पॉजिटिव काम कीजिए, हम इस मुल्क को बनेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे, तरक्की करेंगे, इसकी तरक्की में हिस्सा लेंगे। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, और जमहूरियत में हमें एतमाद होना चाहिए। अब पार्लियामेंट तरस रही है अच्छे मुखर्रिर को जो आवाज़ उठा सकते हैं, जिस वास्ते पार्लियामेंट बनाई गई थी जमहूरियत में। आज आप वो माहौल नहीं देखेंगे। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं 24 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ, अल्लाह फिर उसने 10 साल में पार्लियामेंट चलाया हूँ। मुझे आज में पार्लियामेंट देखे तो मुझे रोना आता है। अदीब भाई कह रहे थे कि मेंबर बोलता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुनता है। अदीब भाई, मुझे आज मैं कहने मुझे फ़ख्र होता है कि अदीब भाई पार्टी से कोई जुड़े नहीं थे, हालांकि कांग्रेस का साथ देते थे, पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। तो जब वक्त मिलता है तो बहुत कम मिलता था, मगर जब वो खड़े होते थे, हर एक मेंबर को वक्त दिया जाता है, मगर जब उनका वक्त हो जाता है तो मुझे बेल मारने नहीं होता कि मैं खाली सुनता रहूं। ये है, हर आदमी अटेंशन से सुनता है। आपको पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीर की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि कम्युनल लोग देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पार्लियामेंट में अपना बात रखने वाले होना चाहिए, अपने हक़ को पूछने वाले होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत में बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। खुद अम्बेडकर ने कहा है कि वो पार्लियामेंट, वो जमहूरियत जहाँ हर फ़िरक़े के लोग गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे, जो वो जमहूरियत भी नहीं है, वो हुकूमत भी, वो मेजॉरिटेरियन हुकूमत है, ना कि जमहूरी हुकूमत। तो आज हम देख रहे हैं
جو امبیڈکر 1930 میں کہے تھے کہ اس کو میجارٹینین گورنمنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ جمہوری گورنمنٹ ہونا چاہیے. تو ہم ایک لڑائی لڑ رہے ہیں جو ان کا RSS والوں نے 50-70 سال پہلے سوچا تھا، ان کا خواب پورا کر لیا ہے. تو اس لیے ہم کو مل جل کر اتحاد سے کام کرنا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہے کہ عدی بھائی، یہ ان کے صحت کے صحیح نہیں رہتی اور جد و جہد ملک میں آج ان کو آنے کی ضرورت نہیں، درد ان کو لے آیا تھا. تو مجھے کل پرسوں فون آیا کہ میں آنا چاہتا ہوں، ورنہ ہم بڑا جلسہ رکھ سکتے تھے، وقت کی کمی تھی. کل ہی ان کا پروگرام یہ ہوا، ورنہ ایسے مقرر ایسے درد رکھنے والے بہت کم ملتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ آئے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو آج آئے، ہم اپنے خیالات ہمارے سامنے کے. شکریہ.